A mechanism which is available to you for redressing your grievances. Correct? Then सेवोत्तम essentially, as I said, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो सेवा और उत्तम, excellence in service is what is the intent, right? The whole idea here is the transparency, the efficiency and accountability is emphasized through this model. Why is efficiency necessary for us? Anyone? It was conceptualized under DRPG, as I said, in 2005, right? And institutionalized as a government-wide framework for service delivery excellence. Service delivery, do you all agree that since we have gathered here, we all provide services? Do we or we don't? We do. How can we make our services better than what is existing today? And what should be our journey to excellence? Right? This was endorsed in the second administrative reforms commissions of a citizen-centric government recommended by the commission then, and this is basically a 7-step approach which talks about define services, set standards, develop capability. This is supported through guidance notes, handbooks, right, etc. These are all available for your use on the DRPG website. अगर आप DRPG की वेबसाइट पर जाएं और सेवोत्तम को सर्च करें तो आपको lots of guidance notes, handbooks, DRPG. Sir, once I was not getting my income tax refund. Okay. And moreover, sending the refund, the income tax department was sending the demand. And that was because my whole of the income tax was not considered as the deposit in the income tax department. And I was very not happy because for before that period I was getting my all the income tax refunds regularly. And what did you do? Then I went to the income tax department. I did not get any help. Then I met income tax officer. I did not get any help. At last, I went to CP Grams and I lodged the complaint. And immediately I was able to get the call from the income tax department, and the person asked me my problem. I sent all my documents and I was able to get my refund in spite of the demand from the income tax department within 3-4 months, which I was spending for 2-3 years. Wonderful. That is what the CP Grams I used. Wonderful. So, thank you so much. And this is one forum that we can use. यदि हमें किसी भी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस से कहीं तकलीफ है, right? Log in on the go to the internet, look for CP Gram. गूगल में सर्च कीजिए, उनके पोर्टल पे जाइए, वहाँ ये आपसे पूछता है किस मंत्रालय का कंप्लेंट है, किस मंत्रालय का काम है, जहाँ जो नहीं हुआ, सामने गया इनकम टैक्स में गए होंगे, राइट? सो यू कैन गो एंड लॉज योर कंप्लेंट. Be rest assured that your complaint is looked into, and there is a time frame, set 45 days का time होता है, within which you are supposed to get a response, right? The response will include what is the action that they are taking at their end, and you will be kept informed about the progress of your grievance. So in case you have in future any grievance against public services, whether in Uttarakhand or in central government, you can use this portal for lodging your grievance, right? And then be assured that you will get a redress. Wonderful, thank you. Developing standard operating procedures and also use the ICT enablement, right? The information and communication technology interventions today are helping lots of organizations to automate your processes.
आज की डेट में इनफैक्ट अब तो नया आप AI driven initiatives are also available in the market. You can request ChatGPT the transparency in your governance. It also encourages active citizen participation to improve the delivery and हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मंथन कार्यक्रम आजकल चलाए जा रहे हैं सीरीज़ों के तरह। तो आज उसी का एक भाग है, तो इसमें मिलते हैं। आज तो संजोग ये रहा है कि सौरभ थपलियाल जी जो इनके डायरेक्टर हैं इस चैप्टर के, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सज्जन हैं, देखते हैं। वो अपना परिचय खुद देंगे और उसके बाद वो अपने बताते हुए बताएँगे कि आज किन मुद्दों पर मानक मंथन का कार्यक्रम था। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ललित मेहता है। मैं रिटायर्ड सीनियर डायरेक्टर भारतीय मानक ब्यूरो से हूँ। अ, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे देहरादून के भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय ने की उन्होंने व्यवस्था की है। इस सेमिनार में आज अ, उत्तराखंड के कई पब्लिक सर्विस विभाग के कई लोग यहाँ शामिल हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं उनको बताएँ कि पब्लिक सर्विसेज कितनी इम्पोर्टेंट है। यदि हमने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो भारतीय मानक एक अ, इस विषय पर अवेलेबल है, जिसको हम सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। यदि हम उस मानक को अपनी संस्था में लागू करें, तो हम अपनी सर्विसेज को काफ़ी अच्छी तरह से एक आम जनता को प्रदान कर सकते हैं। तो ना बीच में मैं आपको रोकते हुए पूछूंगा कि जो भी सर्विस मानक हैं, तो अभी तय है यहाँ पर सरकार के जो विभाग हैं, अलग-अलग विभागों में मानक तय हैं या अब तय होंगे? नहीं, ऐसा है, हर एक विभाग के अपने मानक हो सकते हैं। जो ये मानक की बात हम कर रहे हैं 15700 आईएस 15700, ये एक बहुत ही जेनेरिक मानक है। ये अपने हर एक विभाग को अपना एक इंडिपेंडेंस देता है। वो अपने हिसाब से तय करे कि वहाँ कौन से मानक कितने समय में काम होगा, अपने यहाँ लागू करें। एक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस मानक में व्यवस्थाएँ हैं कि जो आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें बाकायदा ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड है कि नहीं है, उसमें अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं। जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको साथ लेके ये मानक बनाना है और उन मानकों को आपने लागू करना है। तो मतलब मानक ब्यूरो ये तय नहीं कर रही है विभागों पे कि आपको क्या मानक बनाना है, बल्कि विभाग को ये स्वतंत्रता है कि वो अपना मानक तय करे, तो क्या उस मानक को फिर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? हाँ, उसमें क्या वो सिस्टम है? ऐसा है, ये एक मानक जो 15/700 का मैंने बताया, ये एक सर्टिफ़ाइबल मानक है। तो यदि एक विभाग अपने यहाँ पे इस मानक को लागू करना चाहता है, तो वो अपने मानक तय करे, हमें बताए और इस मानक के तहत जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को वो अपने यहाँ कैसे लागू करेगा, वो हमें बताएगा। और फिर हम एक इंडिपेंडेंट ऑडिट के द्वारा उस विभाग में जाकर देखेंगे कि क्या जो उसने हमें कहा, वो चीज़ें मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। यदि वो मीट हो रही होती है, तो फिर भारतीय मानक ब्यूरो उनको 15700 के तहत एक सर्टिफ़िकेशन प्रदान करता है, जिसके तहत वो ये कह सकते हैं कि हमारी जो सर्विसेज़ हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मानक के तहत फॉलो हो लागू हो। लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो स्टैंडर्ड तय किया जाएगा मानक ब्यूरो के द्वारा या विभाग अपने द्वारा तय करती है, यदि उस मानक पे काम नहीं हो रहा है, तो जो आम जनता होगा, वो विभाग में शिकायत दर्ज कराए या मानक ब्यूरो के पास दर्ज नहीं, कराए? सबसे पहले इसका एक चैनल होता है, जिस किसी भी सिटीज़न को कोई सर्विस में कोई तकलीफ़ है, कोई बाधा है, वो सबसे पहले विभाग में जाए, राइट? और विभाग में उसका निवारण होगा, तभी ही बात बनेगी। यदि वो आईएसओ 15 आईएस 15700 का सर्टिफ़िकेशन ले लेता है, तो यदि एक आम नागरिक उस विभाग में जाता है कि मेरा काम नहीं हुआ और वहाँ पे फिर भी कोई काम नहीं होता, फिर वो भारतीय मानक ब्यूरो के पास अपनी शिकायत लेके आ सकता है, यदि वो सर्टिफ़ाइड हो जाती है विभाग। तो अभी जैसे जितने भी यहाँ पर सरकार के विभाग हैं,
तो उसमें से कुछ का नाम बता सकते हैं जहाँ किस-किस विभाग के लोग यहाँ पर? पीडब्ल्यूडी से लोग आए हुए हैं, स्वच्छता विभाग से हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, कई विभाग। आप हमारे चैनल के माध्यम से या अपने भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय की ओर से आप क्या जनता को क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें कि आपको क्या सर्विसेज़ मिल रही हैं। आप अपने हक अदा करें। कोई अगर ये कहता है जी हमारे यहाँ सर्विस मिलती है, कल आएँ, नहीं। एज़ अ सिटिज़न यू शुड बी अवेयर व्हाट इज़ इट दैट कैन बी प्रोवाइडेड, यू शुड सीक फॉर दैट। बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपना हक नहीं माँगेंगे, तो हमारे यहाँ टेंडेंसी होती है कई बार जो चीज़ बोला नहीं वो मिलता नहीं। राइट? तो वैसे इसीलिए इस मानक में प्रावधान है कि जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसको एक सिटीजन चार्टर के तहत आप उसे कहीं पब्लिकली डिस्प्ले करें, ताकि आम जनता को पता रहे कि यहाँ हमारे यहाँ ये सर्विसेज मिलती हैं और इतने समय में मिलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मानक में इसका प्रावधान। तो आगे भी क्या ये आज जो आपका प्रोग्राम है ये चंडीगढ़ कार्यालय के द्वारा है, जो देहरादून चैप्टर के अंदर ही आता है। तो आगे भी आप कोई प्रोग्राम मतलब करते हैं या उससे पहले भी आपने किया है अपने वैसे कार्यालय के बहुत तहत वहाँ प्रोग्राम पे कर जो है चुके सो? हैं हम लोग। हम लोग ने हरियाणा में भी किया है, चंडीगढ़ में भी किया है। तो ये एक सीरीज़ है जो कि वो हमारा जो देहरादून ब्रांच ऑफिस है, उसके तहत ये किया जा रहा है। वैसे हमने ये आपके जो उत्तराखंड में नैनीताल में जो एकेडमी है, वहाँ भी उनके साथ भी हमारा एक एमओयू हो गया है और वहाँ पर भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम और चलिए हमारी बहुत-बहुत शुभकामना आपको है। धन्यवाद। इस सीरीज़ में आपको सफलता मिले, चूँकि हमने बहुत कवर किया, बहुत सारे सीरीज़ इसमें देखे हैं, सौरभ जी के साथ जो है सो। तो आपको बहुत-बहुत बढ़ते रहें। धन्यवाद आप आपके साथ। हाँ, आप सभी जनमानस से भी ये उम्मीद है कि आप अपने इस मानकों को तैयार रखें कि क्या मानक है, उसे अपनी जानकारी रखें और उसके अनुकूल कार्यालय में अपना काम करवाएँ और नहीं होता है तो फिर अपने कार्यालय के प्लेटफ़ॉर्म पर ही शिकायत करें और फिर भारतीय मानक ब्यूरो में भी शिकायत करें इसका जो है सो। धन्यवाद। धन्यवाद।